So hello students, আজি আমার পার্সেন্টেজ পার্ট 2 সেকেন্ড পার্ট মোটামুটি 4টা কি 5টা পার্ট হবে পার্সেন্টেজ গোটেখিনি হেক করার কারণে। সো লেটস স্টার্ট উইথ টুডেজ সেশন। বেসিক বস্তুখিনি আমার ডেফিনেশন কি হয়, পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ পার্সেন্টেজ ডিক্রিজ এগুলো অলরেডি হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 1 লাস্ট ক্লাসতে পড়া হয়েছে, কোশ্চেন নাম্বার 2 লাস্ট ক্লাসও হয়ে গেছিল। এতিয়া আহক কোশ্চেন নাম্বার 3। কোশ্চেন নাম্বার 3 এটা আজিৰ ক্লাসৰ ফার্স্ট কোশ্চেন। ওকে, সব 37 1/2% এটা ফ্র্যাকশনাল কনভার্ট কৰি দিছে। সো 37 1/2% ফ্র্যাকশনাল কনভার্ট কৰিব আপুনি অবভিয়াসলি এটা বেসিক মানে যেটা আমার কোর্সে যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে শিকিছিলো যে 30 যিকোনো পার্সেন্টেজ যেটা ভগ্নাংশ যিকোনো পার্সেন্টেজ আপনার দিয়া থাকিলে শতাংশ দিয়া থাকিলে ভগ্নাংশ যদি কনভার্ট কৰিব লগা হয় আপনি ডাইরেক্টলি কি কৰিব 37 1/2 পার্সেন্টেজত ঠাইত আপনি কি লিখিব 1/100 হয় না। ইয়াৰ পিছত ক্যালকুলেশন কৰিব আনসার পাই যাব। তো দিস ইজ আ ভেরি বেসিক টেকনিক যেটা আমি অলরেডি আমি গম পাও লাস্ট ক্লাসে আমি শিকিছো। আজি এটা বেলেগ এটা টেকনিক আমি শিকিম। বেসিক টেকনিক মানে যে সাপোজ যদি আপনার দিয়া আছে 37 1/2%, আপনার দিয়া আছে 37 1/2%, তেতিয়া আপনি এটা অবভিয়াসলি এটা একটা প্রসেস আছে যেটা বেশি ক্যালকুলেটিভ অলপ সময় লাগিব। বাট আপনি যদি বস্তু এনেকে যদি ভাবে যদি 37 1/2% আমি এনেকে লিখিব পাৰো না নাই যে 25% প্লাস 12 1/2%। সাবসুন 25 আর 12 প্লাস করো 37 লগতে হাফ 37 1/2%, है ना। अभी 25% फ्रैक्शन যদি কনভার্ট করা হয় কি পাবো আপনি 1/4 আর 12 1/2% কি আছে আপনার 1/25 এর আধা 1/8 এটা ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশন করো। 4 আর 8 এর লসাগুলো কিমান হবে 8, ইয়াতে 8 ক 4 দিয়ে ডিভাইড করো 2 2 1 is 2, এটা 8 দিয়ে ডিভাইড করো 1 1 1 is 1, आंसर इज 3/8 खत्म। ঠিক আছে, তো ইনটু 1/100 তো এক নরমাল মানে প্রসেস আছে আর এটা নিশ্চয়ই আপনি কইবই পারে, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। বাট যদি আপনার এনেকে কিবা ফ্র্যাকশন যদি দিয়া থাকে মানে পার্সেন্টেজ যেটা আপনি উলাব দিতে হলে বেলেগ ধৰণৰ আপনি আগতে ভাবনা চিন্তা কৰি ল'ব যে কিবা এটা বেলেগ দুটা আমি জানা দুটা ভ্যালুৰ মাজত কিবা আমি ডিস্ট্রিবিউট কৰিব পাৰো নেকি। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल इसको कर देता हूं। ये वाला क्लियर है सबका ना, इजी है ये। सिमिलरली सपोज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देता हूं। जैसे मान लेते हैं अपना दिया होल 87.5%, 87.5% अपना फ्रैक्शनल उलाबो दिले तो আপনি কি করব যে আপনি একটা কাম করো 100% মাইনাস 12.5%, 100 पर 12.5 माइनस करो तो अपनी 87.5 पाओ। 100% माने की 1, 12.5% माने की 1/8, 1/8 1 minus 1/8 की पाओ अपने 7/8। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी। যদি আপনি পার্সেন্টেজ ফ্রैक्शन আপনি যদি याते 1/100 करो অসুবিধা নাই, ঠিক আছে বলো। बट ये और एक तरीका है इसको जल्दी करने का, है ना। ओके, सिमिलरली मैं अपना दिलू 433 1/3%, 433 1/3% কনভার্ট ইনটু ফ্র্যাকশন। আপনি কি করব এটা কাম করো 400% প্লাস 33 1/3%। এটা 100% যদি 1 হয় 200% মানে 2, 300% মানে 3, 400% মানে 4 আর 33 1/3% কি হয় 1/3। তো ইয়াতে আপনি দিও 3 12 আর 1 13 13/3, clear 13/3। ओके, सिमिलरली अपना दिया होल 44 अपना दिया होल 44.44%, 44.44% কনভার্ট ইনটু ফ্র্যাকশন। অলপ দিগদারি আকৌ মই 100 দি কৰি নি কৰি বহুত দিগদারি। এটা কাম কৰক নহয়, এটা কাম কৰিলে কেনেকৈ হয় যে আপুনি এটা কাম কৰক যে আমি গম পাও আমি লিখিব পাৰো না 4 into 11.11%, 4 into 11.11%।
মাল্টিপ্লাই কৰা 44.44 পাব আপুনি এতিয়া 11.11% ৰ কিবা এটা ভ্যালু আছিল নেকি আমাৰ যিটো চাৰ্ট বনাইছো লাষ্ট ক্লাস 1/9 ভেরি গুড 4 into 1/9 আহি গ'ল that is 4/9 खत्म मैं बार-बार उस क्लास में बोला था फिर से एक बार बोलूंगा जब तक आपको ये वैल्यूज याद नहीं रहेगा 12.5% 1/8 11.11 1/9 33 1/3 1/3 जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा परसेंटेज का कैलकुलेशन फास्ट कभी नहीं हो ही नहीं सकता ठीक है आपको ये वैल्यूज याद रखना ही पड़ेगा अदर देन दैट कुछ उपाय नहीं है हो जाएगा नहीं होने का नहीं जरूर होगा लेकिन इट विल टेक सम टाइम ठीक है ओके सिमिलरली अपना যদি মই দিও যে 45.45% কনভার্ট ইনটু ফ্র্যাকশন 45.45% আপনি কি কৰিব পাৰে কনভার্ট ইনটু ফ্র্যাকশন না এটা এনে লেখা যায় নাকি সব শুনতে 9 ইনটু 5 into 9.09 5 nines are 45 5 nines are 45 which is 45 so 5 into 9.09 the 9.09 মানে কি 1/11 that is 5/11 5/11 ठीक है आप इसको ऐसे करने जाएंगे आपको बहुत सारा टाइम लगेगा ऐसे करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है ओके अपना दिया होल से सिंपल जो सपोज करो 777.77% 777.77% convert into fraction আপনি কি কৰিব 700% plus 77.77% 700 plus 77 777.77 আহি গ'ল এতিয়া 100% যদি 1 হয় 200% 2 হ'ব 700% equal to 7 और 77.77 इसको लिख सकते हैं 7 into 11.11% 7 plus 7 into 11.11 माने 1/9 so this is 7 plus 7/9 9 9 7 is 63 plus 7 70/9 आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं आप चाहे तो इसको डिवाइड कर लीजिए डिवाइड करने से 7/9 आएगा यही आपका आंसर 70/9 is the correct answer ঠিক আছে তো বেসিক্যালি मैं लास्ट দুটা স্লাইডত মই এইটো আপোনাক দেখাব ট্রাই কৰিলো যে পার্সেন্টেজ টু ফ্র্যাকশন সদায় যে বহুত ইজি ভ্যালুজ থাকিব এনেকে নহয় কেতিয়াবা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভ্যালুজ থাকিব পাৰে বাট যদি আপোনাৰ এটা সিম্পলিফিকেশনৰ যদি পাৰ্ট হয় আপোনাৰ কিবা এটা ডাঙৰ এটা কোশ্চেনত আপুনি 777.77 পালে एक बात तो 100% श्योर है आपके एडीआरई या आसाम पुलिस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो बनाएगा वो ये सोच के क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि आप ये लड़का या लड़की स्टूडेंट बैठे एग्जाम करने के लिए और घंटों लगा दे क्वेश्चन करने के लिए कभी ये सोच के क्वेश्चन बन ही नहीं सकता क्वेश्चन जब बनाया जाएगा आपको उसमें जरूर कुछ ट्रिक होगा जो आपको पकड़ना है कि जैसे 45.45 आपको पता होना पड़ेगा कि 9.09 कुछ एक है उससे 5 मल्टीप्लाई करूंगा 9.09 मुझे टेबल में ऑलरेडी दिया गया है 1/11 तो डायरेक्टली मैं निकाल पाऊंगा अभी आप में से बहुत कोई क्या करेगा ठीक है मैं शुरू कर दिया रफ करना पहला बात है रफ वर्क का स्पेस बहुत कम रहता है दूसरा बात है जितना आपकी बहुत ही बेसिक थंब रूल है जी कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत थंब रूल आप जितना पेन पेंसिल ज्यादा यूज करेंगे आपको नौकरी मिलने का चांस उतना कम और ये कोई एग्जैक्ट वाला बात नहीं है बहुत सिंपल लॉजिक है जो जितना पेन पेंसिल यूज करेगा उसको नौकरी उतना कम मिलने का चांस रहेगा जो जितना कम यूज करेगा ऐसा नहीं कि तुक्का मारते जाओ तो दूसरा बात हो गया लेकिन जो जितना कॉन्फिडेंट है अपने कैलकुलेशन में पेन पेंसिल कम यूज होगा ऑब्वियसली सर टाइम सेव होगा तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे तो ज्यादा आपका चांस बनेगा ठीक है तो आपको ये सब चीज आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की दिया है 0.28 part of a window is painted black 0.33 part is painted red
what is the percentage part of the window to paint? Simple. এটা window তিনিটা part আছে ধরো, এটা window তিনিটা part আছে, first, second, third. So first part is painted black. This is painted black, 0.28. Next is 0.33 part. It is painted red. তো বাকি ইমানখিনি জায়গা বাকি আছে পেইন্ট করা, এটা কালার করা হওয়া নাই, আপনার গুলাব দিলে এই জায়গাখিনি কিমান, এই জায়গাখিনি আপনার গুলাব দিলে এটা পার্সেंटेज गुलाब दिले. बहुत सिंपल है. देखिए इसका तो ऐसे ऐसे ही विदाउट यूजिंग पेन पेपर ऐसा आ रहा है. कैसे देखिए 0.28 परसेंटेज की होगा, 0.28 इन परसेंटेज की मान होगा, परसेंटेज माने की इनटू 100. तो 0.28 इनटू 100 कीजिए कितना होगा, 28 होगा. तो दिस इज बेसिकली 28 परसेंटेज. तो बताओ 0.28 মানে কি, 0.28 যদি পার্সেন্টেজ কনভার্ট কৰিব লাগে 0.28 ইনটু 100 পার্সেন্টেজ হয় না নাই. তেতিয়া আপুনি এই 0.28 মানে কি 28 বাই 100 ইনটু 100 পার্সেন্টেজ, এই 100 গ'ল, দ্যাট ইজ 28 পার্সেন্টেজ. সিমিলারলি 0.33 মানে কিমান হ'ব, 33 পার্সেন্টেজ. টোটাল কিমান হৈ গ'ল আপোনাৰ প্লাস কৰোতে 28 প্লাস 33 63 परसेंटेज. अरे विंडो टू कंप्लीट विंडो किमान परसेंटेज, कंप्लीट उसको किमान परसेंट हो 100%. उसमें 63 ऑलरेडी हो चुका है, 100 में 63 पेंट ऑलरेडी हो चुका है. कितना बाकी है, 100 से 63 माइनस करेंगे, कितना परसेंटेज, दैट इज 61 ना. ओके 61, दिस इज 61. तो 100 माइनस 61 39%. 0.28 ব্ল্যাক মানে 0.28 মানে 28% ব্ল্যাক পেইন্ট, 33 0.33 মানে 33%, 33% রেড পেইন্ট. দুটো অলরেডি পেইন্ট করা হয়ে গেছে, বাকি আছে ইমানখিনি জায়গা. কমপ্লিট বস্তুটো 1 হয়, কমপ্লিট মানে 1 মানে 100%. তো 100% এর উপরে দুটো মাইনাস করলো, 28 প্লাস 33 মানে 61, 100 এর উপরে 61 মাইনাস করতে পারো 39. তো 39% এটা পেইন্ট করা বাকি আছে, आंसर ইজ 39%. ক্লিয়ার, ইজি অ্যাবাউট. Moving to the next question. What is the difference between 0.9 and 0.9%? अपना 0.9 और 0.9% এর মাজত ডিফারেন্স ওলাব দিলে 0.9 তো 0.9 এ হল, এটা দেখো কইব লগা নাই. বাট 0.9% লিখা মানে 0.9 আর পার্সেন্টেজ মানে ডিভাইডেড বাই 100 যদি ভগ্নাংশ দেওয়া হয়. তো 0.9 পার্সেন্টেজ বাই 100, তো এটা মানে 9 এই যদি ডেসিমেল যদি উঠাই দিয়ে, ডেসিমেল উঠাই দিলে তলত এটা 10 আহিব, বিকজ 11 পিছত আপোনাৰ ডেসিমেল তো 10 এটা আহিব. এই ডেসিমেলৰ কাৰণে 1 আৰু আফটাৰ ডেসিমেল কেইটা ডিজিট আছে, এটা ডিজিট আছে, এখানে এটা 0 10, তলত তো অলরেডি 100 এটা আছে. তো দ্যাট ইজ 9 বাই 1000, দ্যাট ইজ 900.0 মানে নাই. এই যে 1 এর কারণে এটা ডেসিমেল, আর আফটার 1 কেটা ঘর থাকিব, তিনটা ঘর মানে দুটা 0 একটা 9 আহিব. এতিয়া আপনার এই যে ভ্যালু আছে 0.9 আর 0.009 ইয়ার মধ্যে আপনার ডিফারেন্স ওলাব দিলে. তো 0.9 আর 0.009 ইয়ার মধ্যে ডিফারেন্স, এটা একটা 00 দি দিও হয় না. 900 এর প্লাস 9 যদি যায় কিমান হবে 891. आंसर is 891, 0.891. 0.891 is the correct answer. 0.891 is the correct answer. Clear? Just normal calculation, इसमें कुछ ऐसा समझने लायक कुछ बात है ही. नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करना है. क्लियर? आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. In a class of 60 students, at a class of total 60 students, 60% are boys, তার ভিতর 60% boys. Okay, 25% of the girls come to school by bicycle. 25% वाली होतले bicycle इदी, साइकिल इदी स्कूलत आहे. उलाबो दिले find the number of girls who don't come cycling to school. जी होतले वाली साइकिल लो घर में पुस्कारी आहे यार स्कूल होतले. देखो तो नंबर 2 उलाबो दिले. बहुत सिंपल देखेंगे.
पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको बहुत जल्दी कर ले, जैसे लिख लिख के तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना, लेट द नंबर भी एक ऐसे पकड़ के तो पूरा बोर्ड भर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। कैसे जल्दी कैलकुलेशन होगा देखिए, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 60, अपना बोला बुझले কি আগত আপনি উলাইলক নাম্বার অফ বয়েজ, লরা কেজন আছে, লরা আছে 60%, 60% অফ হোয়াট, কি হয় 60% টোটাল স্টুডেন্ট অফ, প্রো স্টুডেন্ট কিমান 60, তো 60 60%, 60% অফ 60 কিমান হ'ব, 60% of 60 A0 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 6 is the 36, তো টোটাল আছে স্টুডেন্ট হল আপনার 60, তার ভিতর লরা কেজন আছে 36, তো ছোৱালী কেজন আছে 60 পৰা 36 মাইনাস কৰি দিয়ক, কি ওলাব আপোনাৰ 24 জন, এই 24 জনৰ টোটাল নাম্বার অফ গার্লস, ছোৱালী কেজন আছে 24 জন আছে। এটা চাব 25% অফ দা গার্লস, 25% অফ দা গার্লস বাইসাইকেলত আহে, সো এই যে 24 এটা টোটাল নাম্বার অফ গার্লস, এই 24 আর 25%, 24 আর 25% মানে কি 25% মানে কি 1/4, 1/4 অফ হোয়াট, 1/4 কি হয় 24, এই 24 টোটাল নাম্বার অফ গার্লস, টোটাল ছোৱালী কেজন 24 জন, এই 24 আর 25% মানে 1/4 অফ 24 কিমান হ'ব 6, এই 6 জন সাইকেলত আহে, 24 জন ছোৱালীৰ ভিতৰত 6 জন ছোৱালী সাইকেলতে আহে, খোজকাঢ়ি কেইজন আহিব 24 পৰা 6 মাইনাস কৰক, क्लियर। फिर से एक बार देखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स, यार ভিতৰত 60% আর বয়েজ, 60% লৰা হয় বাৰু, তো 60% অফ 60, তো আমি কালি লাস্ট দেখিছিলো আমি 80 80 গোল 80 80 গোল 6 6 36, so 36 কি নাম্বার অফ বয়েজ, টোটাল লৰা কেজন 36, টোটাল স্টুডেন্ট 60, লৰা আছে 36 জন, বাকি কেজন ছোৱালী, বাকি কেজন মানে 60 মাইনাস 36 24 জন, তো 24 জন ছোৱালী আছে, এই 24 জন ছোৱালীৰ ভিতৰত 25% 25% অফ দা গার্লস বাইসাইকেলতে আহে, সাইকেলতে আহে, তো 24 এর 25% মানে 1/4, তো 1/4 অফ 24 মানে 6, তো আপনি কাটো 24 অফ 4 দিকে 6 জন আপনার সাইকেলে দিয়ে আহে, 24 জন ছোৱালীৰ ভিতৰত 6 জনে সাইকেলে দিয়ে আহে, তো উইদাউট সাইকেল খোজকাঢ়ি কেজন আহে 24 মাইনাস 6 18 ইজ দ্য কারেক্ট आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। What is the percentage of 15 minutes? What is the percentage of 15 minutes of 1/2 days? 1/2 days of 15 minutes किमान, देखिए बहुत सिंपल है, मतलब आपको 15 मिनट को परसेंटेज में निकालना है, 15 मिनट कितना परसेंटेज है किसका, 1.5 दिन का, तो जिसको आप रेफरेंस में रखेंगे, जिससे आप कंपेयर करेंगे, वो हमेशा नीचे आएगा। এই যে 1/2 ডেজ এটা সদায় তলত আহিব, বিকজ আপনি ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব, কাক কম্পেয়াৰ কৰিব এতিয়া 15 মিনিট, তো ওপৰত যাব 15 মিনিট ইনটু 100%, এই যে आंसर होगा वही पे अपना आंसर होगा, है ना नहीं, ये लाइन तो क्लियर है सर। अभी ये मिनट है, ये डेज है सर, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, संभव ही नहीं, हाँ मुझे भी पता संभव नहीं, तो आप क्या करेंगे देखेंगे, 15 मिनट ये मिनट में है, तो मुझे इसको भी मिनट में लेना पड़ेगा। अभी देखिए क्या होगा, 2 1 is 2, 2 plus 1 3/2, 3/2 days, এটা কি ডেজ, এদিনত কিমান ঘন্টা হয় 24 ঘন্টা, তো 3/2 ডেজত কিমান ঘন্টা হ'ব ইনটু 24, ইমান ঘন্টা, এটা আৱাৰত আহিল, ঘন্টাত আহিল, এইটো এদিনত 24 ঘন্টা, ডেড দিনত 1/2 মানে ডেড দিন, ডেড দিনত কিমান ঘন্টা 36 ঘন্টা, 36 আওয়ার্স, আপনি কাটাকাটি করো 36 এ পাবো আপনি, এটা আওয়ার, এটা আপনার আওয়ার না মিনিটত লাগে, 1 ঘন্টা কে মিনিট 60 मिनट, इकोने मिनट लो अपन 60 से मल्टीप्लाई करो, ये हो कंप्लीट मिनट होता है। ये है मिनट और ये था दिन में नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज को डेज नहीं रख सकते, मुझे मिनट में लेना पड़ेगा, तब जाके कैंसिल आउट होगा, तो इसको पहले आवर में लिए, एक दिन में 24 घंटा, 5 दिन में 5 × 24, 10 दिन में 10 × 24, 1.5 दिन में 1.5 × 24, तो 3/2 × 24 आवर, इसे आवर ऑफ बोला कि मिनट ऑफ इनटू 60 मिनट, क्लियर। 15 दी काटी दियो 4, এতিয়া 8 কাটি দিয়ক 12 হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু তাইক নাই একো কৰিব লগা নাই, ইয়াতে ইনটু 100% আছে, ইনটু 100%, ওকে। সো 4 দি যদি কাটি দিয়ে আপনি, ইয়াতে 4 এটা আছে, 4 দি যদি কাটি দিয়ে আপনি পাবো 25,
তো বেসিক্যালি 25/36 উপর আছে আমার 25 উপর 25 আর 12 3 যা 36 so 12/36% should be the correct answer option C क्लियर ठीक है सर देखिए इसमें हो सकता था इसमें 15 घंटा दे दे 15 आवर तो मुझे मिनट में लेने का जरूरत नहीं है तो मैं सिर्फ इसमें इनटू 24 करूंगा काम खत्म हो सकता है इसको सेकंड में दे दे 15 सेकंड तब क्या करते हैं 15 सेकंड बाय 1.5 दिन तब क्या करेंगे और एक 60 है वेरी गुड 3/2 नंबर ऑफ डेज इनटू 24 आवर होता है गोल इनटू 60 मिनट होता है गोल लागे सेकंड हो इनटू 60 क्लियर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Virat Kohli scored 120 runs. Virat Kohli scored 120 runs, which included 6 boundaries and 4 sixes. Virat Kohli total 120 run কইলে কিবা একটা ইনিংস হবে। ইয়ার ভিতর 6টা বাউন্ডারি আছে আর 6টা সিক্স আছে। What percentage of this total score did he make by running between the wickets? So মানে রানিং বিটুইন 1 রান 2 রান 3 রান লই কিমান রান পার্সেন্টেজ কইলে আর বহুত নরমাল। एक विराट कोहली 6 चौका मारा और 4 छक्का मारा तो 6 चौका में कितना रन होगा 6 into 4 और 4 छक्का में कितना रन होगा 4 into 6 24 plus 24 48 से 48 रन बाउंड्रीज होता है 6 और 4 होता है टोटल रन किमान टोटल रन हो 120 सो 120 रनर ভিতর 48 रन तो बाउंड्री ता है तो बाकी रन की रनिंग विद इन द विकेट 1 रन 2 रन एक डबल सिंगल ये सब लिया गया है तो बाकी कितना रन बाकी रहा 120 रन में से 48 रन बाउंड्री में आया है तो बाकी जितना रन रह गया वो तो रनिंग विद इन द विकेट्स आया ना वो एक रन डबल्स लिया ट्रिपल लिया माइनस कर देंगे इसको माइनस करने से कितना आपका आएगा 70 ये 72 रन जो हुआ है विराट कोहली आपका सिंगल डबल सब ट्रिपल में लाया है और नॉर्मली उनके इनिंग्स में ऐसा ही होता है रनिंग विद द विकेट्स बहुत अच्छा रहता है इथे 72 से आहे बोल इस 72 अपना गुलाब दिला जे रनिंग बिटवीन द विकेट्स माने अपना सिंगल डबल से ट्रिपल दी किमान परसेंटेज रान करा हो तो 72 इट होल सिंगल डबल और ट्रिपल दी आउट ऑफ किमान आउट ऑफ 120 इनटू 100 ये होल अपना आंसर माने कैलकुलेशन করে যদি পাবো এটা आंसर 20 दी काट ऑफ 6 20 दी काटे 5 6 दी काटे 12 तो 12 into 5 60 आंसर इज 60% आंसर इज 60% क्लियर कंफ्यूजन नहीं है कुछ आगे बढ़े 75% of 480 x% of 540 equal to 603 फिर कैलकुलेशन करबो লাগে 75% of 480 plus x% of 540 इक्वल टू 603 एक चीज में हालांकि मैं पहले भी बताया हूँ फिर से एक बार बता दूं ये ऑब्वियसली अगर आप ये सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन से मैं ही करवा रहा हूँ যদি আপনাদের বেলেগ বেলেগ কিতাব বা বেলেগ বেলেগ यूट्यूब चैनल है सेम क्वेश्चन निश्चय के पाबो तो डाउन কথা না বা অলপ অলপ ভ্যালু দিয়ে लेकिन आप देखेंगे ना बहुत सारे इसमें क्या सिखाते बहुत आराम से किया जाता है और बहुत धीरे धीरे इसको सिखाया जाता है वो करने से मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल फिलोसॉफी है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करेंगे तो चीज को फास्ट करना बहुत जरूरी है तो मुझे पता है कि मैं जितना स्पीड में जा रहा हूँ इसमें से शायद बहुत लोगों को होगा कि दिक्कत होगा आपको मैच द स्पीड लेकिन यकीन मानिए अगर आपको नौकरी लेना है तो इस स्पीड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा तो अभी मान लीजिए आप में सबको बोल रहा जो लोग वीडियो देखे उन लोग को भी जो लोग ऑफलाइन बैठे उन लोग को भी अगर आप लोग को ये लगे कि आज का क्लास थोड़ा जल्दी निकल गया मैं उतना स्पीड मैनेज नहीं कर पाया सर बोलने के बाद मैं कैलकुलेट कर पाया तो इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा कि अभी भी आपको स्पीड मैचअप करने में थोड़ा और टाइम लगेगा तो बेटर है जब आप नहीं समझ पाएंगे मेक श्योर कि उसी दिन घर में जाकर उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए और देखिएगा उतना स्पीड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आपकी इंप्रूवमेंट जरूर होगा
लेकिन मैं आपके लिए अगर स्पीड को स्लो कर दूंगा, इसमें लॉस आपका है, मेरा नहीं है ना। तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे। मैं বাৰু ইয়াতে যদি বিচাৰো ইয়াতে মই 75/100 লিখিম, তাৰ পিছত কটাকটি কৰিম, তাৰ পিছত কিবা মাল্টিপ্লাই কৰিম, তাৰ পিছত ইয়াতে ভ্যালু এটা মই তিনিটা স্টেপ কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে ভ্যালু এটা পাব পাৰো। বা এনেকে নকৰো আমি, কি কৰিম আমি 75% লাগে, বাদ দিও 75, 25%, যদি 25% অফ 480 যদি ওলাব দি, 25% মানে 4 ভাগৰ 1 ভাগ, তো 480 25% কিমান হ'ব, 4 ভাগৰ 1 ভাগ কিমান হ'ব, 480 को 4 से डिवाइड कीजिए 120। यदि अपना लगे 75%, तो 25% और किमान गुण 75%, 3 गुण, तो 120 आया था, उसका भी 3 टाइम्स 120 आया था ना 25%, 120 का भी 3 टाइम्स कीजिए, 360 हो गया। 360 या तो अपने डायरेक्ट 360 पाले। आपको कोई 75% लगे, अपने जेनेका लोग कैलकुलेशन कोई पारे, 75% माने 75/100 माने 3/4, तो 4 এদি তো ডিভাইড করো 120, লগতে এতে 3 আছে, 3 দি पूर्ण করে দাও 360। और ज्यादा ब्रेकआउट करेंगे कैसे, 75% नहीं चाहिए, 25% मानिए, 25% माने 1/4, 1/4 माने 4 भागों 1 भाग, तो 480 4 भागों 1 भाग माने 120, तो 120 का तो 3 गुण करें, बिकॉज़ 25 এর উপর 75 যাব লাগে, মানে 3 মাল্টিপ্লাই, तो 120 into 3 360 खत्म। ইয়াতে একো কৰিব লগা নাই, ইয়াতে আপনি এনে রাখো, ইয়াতে যদি আপনি বিচারে এনেকো লিখিব পারে, x পার্সেন্টেজ মানে 540 পার্সেন্টেজ আছে, সো ডিভাইডেড বাই 100 করে দিও, এন্ড দিস ইজ 603। ক্লিয়ার? সো 603 মাইনাস 360 কিমান হ'ব, 603 600 করো, 600 মাইনাস 360 240, আর এক্সট্রা 3 এটা আছে মানে 247 পাই যাব আপনি, 247 হৈ গল। এটা ইকুয়াল টু ইয়াতে কি লিখার কথা আমার, ইয়াতে ইকুয়াল টু কি, এই গোটেইখিনি বস্তু ইকুয়াল টু ইয়াতে লিখিম নহয়, ইয়াতে লিখিম নহয়, নিলিখো, বাদ দিও, তলত 100 আছে নহয়, 100 এটো উপৰত বলে কি হ'ব, মাল্টিপ্লাই হ'ব, ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও, আৰু এই 540 উপৰত আছে নহয়, তলত আহিলে কি হ'ব, ডিভাইড হ'ব, দিস ইজ ইকুয়াল টু x, ठीक है ना। 360 उधर जाएगा, 603 माइनस 360, आपने 603 बात दियो, 600 कंसीडर करो, 600 माइनस 360 কিমান পাবো আপনি, 240, লগত আৰু 3 এটা আছে মানে 247, ও 240 243 সরি 243 সরি 243 হ্যাঁ ঠিক আছে না, 243 ইয়াতে 100 আছে, 100 উপৰত গলে মাল্টিপ্লাই হ'ব, 540 তলত আহিব। এটা আপনি ক্যালকুলেশন করো, 4379, ইয়াতে আপনি 9 দি যাব আপনার, 9 2 যা 18, 9 7 যা 63, 9 দি যদি যায় 960, আপনি 20 দি যদি কাটে 3, 20 দি যদি কাটে 5, 3 দি যদি কাটে 9, তো x ইকুয়াল টু 9 5 যা 45, x ইকুয়াল টু 9 5 যা 45 মানে 45% ইজ দ্য কারেক্ট आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 45% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 45% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, the quantity of common salt is 320 gram of water is 33 gram, okay, 320 গ্রাম ওয়াটাৰৰ ভিতৰত 33 গ্রাম 33 গ্রাম সল্ট আছে, আপোনাৰ পার্সেন্টেজ অফ মাস বাই মাস মানে ऊपरतो मास থাকিব মানে ग्राम, तलतो ग्राम আহিব, ग्राम बाय ग्राम। तो बेसिकली इसमें ज्यादा समझना नहीं है आपको, इसमें वो एक एक्चुअली केमिस्ट्री का टर्म है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय मास, वो आपका सॉल्यूशन सॉल्वेंट चैप्टर में आता है, अभी इसको गोली मारी। आपको बेसिकली इधर आपको परसेंटेज निकालने दिया है, अपना क्या था শতাংশ ওলাব দিলে, কি হল শতাংশ, এই সলিউশন যে পানি আর ওয়াটার আছে 320 গ্রাম, 320 গ্রাম, the quantity of common salt is in 320 gram of water is 33 gram, calculate the concentration of the solution in context of mass by mass percentage को तो देखेंगे। सॉल्यूशन का जब बात होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आपका कोई एक चीज से सॉल्यूशन नहीं बनता है, जैसे कि
इसमें मान लीजिए पूरा पानी है, दिस इज ऑल वाटर, तो वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, दिस इज वाटर। ইয়াতে আপনি চিনি বা আপনি সুগার মিলাব পারে, তো ইয়াতে আপনার কোশ্চেন দিয়েছে সল্ট, তো নিমক আপনি মিলাই দিলে সল্ট, সল্ট ইজ সলিউট, ইয়াতে সলিউট যেটা আপনি ডিজলভ করব এটা সলিউট, যত আপনি ডিজলভ করব যেটা অ্যামাউন্ট বেশি থাকে এটা সলভেন্ট, তো ইয়াতে ওয়াটার ইজ সলভেন্ট, ওয়াটার ইজ সলভেন্ট, সল্ট ইজ দ্য সলিউট। তো আপনার ওলাব দিলে যে সল্টৰ পার্সেন্টেজ কি হয় ভিতৰত সলিউশন, সলিউশন মানে সলিউট প্লাস সলভেন্ট, মানে আপনার 33 গ্রাম, 33 গ্রাম কি নিমখ আছে, সল্ট আছে, 33 গ্রাম কত আছে এই জায়গাত আছে, ইয়াতে আছে, আর ইয়াতে কি কি আছে আপনার, ইয়াতে আপনার পানি আছে, পানি কিমান আছে আপনার, ইয়াতে পানি কিমান আছে আপনার 320, লগতে নিমখ আছে, নিমখ কিমান আছে 33। तो मैं अगर बोलूं इसका टोटल मास कितना है, इसका टोटल मास तो 320 ग्राम पानी 33 ग्राम नमक मिला के जो होगा जो टोटल मास, ये टोटल मास में आपका नमक कितना है 33 ग्राम है, क्लियर, इनटू 100%, इनटू 100 कैलकुलेशन करके जो होगा ऐसा 33 353 इनटू 100%। तो कैलकुलेशन करेंगे जल्दी जल्दी, इसका देखिए कितना आ रहा है, इसका देखिए कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 3.5 9.4 9.45%, 9.45, अभी इसमें एक चीज देखेंगे ना, ये जो मैं 9.45% आया है, मैं क्यों कैलकुलेशन का नहीं किया हूं, रीजन भी मैं अगर इसमें मेरा कोई शॉर्टकट नहीं होगा ऑप्शन देख के, तो ऑप्शन देख के 9.25 9.35 9.45 9.55 है, तो मैं शॉर्टकट में कुछ दिमाग तब लगा पाता अगर ऑप्शन आपका ऐसे रहता 6% 7% 9% 15%, तब मैं दिमाग लगाता, लेकिन ये सब तो बहुत करीब करीब है तो दिमाग में कहाँ लगाऊंगा, लेकिन मान लेते हैं इसका ऑप्शन ना बहुत दूर दूर है 6% 7% 9% 15%, सपोज तब मैं क्या करता हूँ सोचिए 100 ऐसा ना 350, 353 को 350 मानिए, तो 100 का कितना गुना 350 होगा 3.5 टाइम्स होगा ना 3.5, अगर 33 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, इससे क्या बोलो सोचिए, मान लीजिए अगर मुझे अप्रोक्सीमेट करना था, मुझे ऑप्शन बिना कुछ कैलकुलेशन के टिक करना था, मैं ये कैलकुलेशन का स्किप करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूंगा, दिस इज 350 दिस इज 100, 100 लोग 3 मल्टीप्लाई कर 350 पाओ, 100 लोग 2 मल्टीप्लाई कर 200, 3 मल्टीप्लाई कर 300, 4 मल्टीप्लाई कर 400, 3.5 मल्टीप्लाई कर 350 है ना, तो ऊपर में 33 नीचे में 3.5, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी 3.5 अगर ये 3.5 है तो 3.5 से 33 जाना है, तो 3.5 का 10 गुना करेंगे, 3.5 का 10 गुना मतलब 35, 3.5 का 10 गुना मतलब 35, 35 से थोड़ा कम मतलब 10 से थोड़ा कम, आंसर आपका 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये वाला कर देंगे, तब ये वाला करेंगे 9.35, इसमें बहुत करीब करीब है, तो ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में मार के आपको देखने के लिए बोल रहा हूं, बिकॉज ये कुछ भी 3.45 की जगह 9.35 कर दीजिए, 3.35 हो गया, अप्रोक्सीमेट करके 35 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये बहुत ज्यादा अलग अलग रहता, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता, तो ये लॉजिक से आंसर निकाल सकते, 3 पॉइंट समथिंग ही हो गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 होता है खत्म। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, A% of A is 96, then A equal to A% of A is 96, then A equal to A percentage of A equal to excellent, ये 96 नहीं होगा, ये 196 होगा, 196 होगा,
This is 196. A percentage of A is 196. Is 196. That is A by 100 into A equal to 196. A square 100 তাতে মুছে যাব তো 100 196 into 100 तो A square 196 माने की 14 square 100 माने 10 square that is 140 whole square 140 into 10 140 का whole square तो A equal to किमान होगा अपना 140 A equal to 140 is the correct answer 140 is the correct answer clear ठीक है আৰু এটা সিম্পল কোশ্চেন অবভিয়াসলি পার্ট অফ স্লাইড নহয় এটা সেপারেট কোশ্চেন মই দি পিনে আজি ক্লাসটো এই সেশনটো হেক কৰিম এই সেশনটো হেক কৰিম এটা কোশ্চেন চাবচোন আগতে অপশন কেইটা দি দিম find the value of root over 100%. Find the value of root over 100%. 10%. सबके पास 1 मिनट का समय है 10% ऑब्वियसली आंसर आ चुका है बाकी 0.1 10 आंसर आपका 10 नहीं होगा 0.1 नहीं होगा आंसर आपका 100% ही होगा कैसे 100% दिया था ना 100% तो 100% माने की 100% माने नॉर्मल कैलकुलेशन नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं गलती का होता है ये क्या है 100 का रूट ओवर तो 10 होता है 100% का 10% खत्म कहानी लेकिन परसेंटेज माने की परसेंटेज माने तो 1/100 तो 100 तो कुछ ही बोल ताकि की रूट ओवर 1 और किमान वैल्यू 1 और 1 माने की 100% ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्लियर 100% মানে পার্সেন্টেজ থাকি লিখলো 1/100 সো 100 কটাকটি গুছি গো থাকি কি 1 रूट ओवर 1 মানে কি 1 और 1 মানে কি 100% है ना सिमिलरली एग्जाम में ये अभी रिसेंट 1-2 साल में ये ट्रेंडिंग है ये क्वेश्चन एक आता है कभी-कभी आपका क्वेश्चन आता है ये वाला तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए कभी-कभी क्वेश्चन आता है ये चीज रूट ओवर 25% रूट ओवर 36% रूट ओवर 7% और এই ধরনের কোশ্চেন যেটা দিয়া থাকি বলা হয় অপশন তো আপনি নিশ্চয়ই কে 25% যেহেতু আপনি অপশন 5% নিশ্চয়ই কে থাকিব আপনি তাতে কোনো সন্দেহ নাই বাকি আর কি থাকব না থাকব পারো 5% নিশ্চয় থাকিব যাতে স্টুডেন্টে দেখা লগে লগে 25 रूट ओवर 5 5% বলি आंसर দি দিয়ে আর -0.5 কারণ 25% মানে কি আপো 25 পার্সেন্টেজ মানে 1/100 উপরে তো रूट ओवर এটা আছে সো 25/100 रूट ओवर तो 25 माने 5 स्क्वायर 100 माने 10 स्क्वायर तो लिखा जाए 5/10 होल स्क्वायर रूट ओवर उठा दिलो लगते स्क्वायर गुसी गो থাকে কি 5/10 माने 0.5 आंसर विल बी 0.5 आंसर विल बी 0.5 क्लियर यहां पे आपका ये सेशन खत्म होता है थैंक यू